नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी पहली बार विदेश दौरे पर, कहा भारत में रोजगार की दिक्कत। गुजरात के सूरत में शांति भंग करने का प्रयास, गणेश प्रतिमा पर पथराव के बाद बिगड़ा माहौल। वडोदरा में सीमेंट मिक्सर ने महिला को उतारा मौत के घाट, भारी वाहनों की आवाजाही पर उठे सवाल। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेदारी, भारत के आर्थिक हालात, रोजगार समेत 6 मुद्दों पर अपनी राय रखी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार विदेश दौरे पर हैं। वे रविवार को अमेरिका के टेक्सास राज्य पहुंचे। यहां उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहले उन्होंने डलास में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने आज सोमवार को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से भारतीय राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सब मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I describe Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. We are not going to accept an attack on our states. Now finally, I'm speaking to people in Dallas. And who are you? You are people who have come from India. And the values that I have been describing, values of the Constitution, values of respect, values of humility, you carry them inside your heart. You have them in your blood. So when you came to this country, you did not come with arrogance. You came with humility. You did not come with hatred. You came with love and affection. And you did not come with disrespect, saying that, we are come to America and who are these people? We'll show them. No, you came with respect. So inside your heart is respect, is love, humility. And you are our ambassadors in one way. You're the bridge between these two unions. United States of America and Union of States, which is written in our Constitution. And so you have a very important role. Because the relationship between these two unions is going to determine the future of both these unions. कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोड़ा ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रैटेजिस्ट हैं। Hoping that we will all work together and Mr. Gandhi, Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues.
He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल में हुए पथराव मामले पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू की है। सूरत में बीती रात गणेश पंडाल में पथराव का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस चौकी का घेराव कर लोगों ने आरोपियों को डिटेन करने की मांग की थी। इस मामले सूरत पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत के मार्गदर्शन में 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। इस मामले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ बैठक कर सूरत में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श किया गया। सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने समूचे मामले पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी है। और हमारे जो पूरे इस एरिया में कमांड कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके माध्यम से, और उसके अलावा जो लोगों के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई, और उसके अलावा जो जितने भी हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने भी हमें हेल्प किया शांति प्रस्तावित करने में, उनके थ्रू भी जो हमें कुछ रिकॉर्डिंग ऐसी मिल गई, जिसके बेसिस पे कॉम्बिनिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है। और इतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए उन्हीं घरों के वहीं से हम लोग कॉम्बिनिंग के उन्हीं घरों से उधर ये आरोपी छुपे हुए एक दूसरे के अंदर जो पूरे इस तरह से छुपे हुए थे, इनका ढूंढना भी मुश्किल था। 4-4, 5-5 स्टोरी घर थे, वहीं से पकड़ा गया। बाकी किसी को भी हैरानगति भी नहीं की गई पुलिस तरफ से, लेकिन सच्चे आरोपी, जो सही आरोपी, जो पत्थर मारने वाले, वो पकड़े जाए, जिससे उनकी कोर्ट में भी हम उनको एविडेंस प्रॉपर रख के सजा दिला सकें। तो ऐसे कुछ कर कुल 3 वहां पे लालगेट पुलिस में अलग अलग गुना दाखिल किए गए। पहला FIR जो दाखिल किया गया वो जो इन 6 जुवेनाइल बच्चों के विरुद्ध दाखिल किया गया। इनका एरिया इस जो भगवान से गणेश जी के जो मंडप था वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर का एरिया आता है। तो ये वहां क्यों आया? क्योंकि जहां पे अभी ये मंडप था वो भी पूरा मुस्लिम एरिया के बीच में, लेकिन वहां पे हिंदू मुस्लिम एरिया बहुत अच्छी शांति से वर्षों से लोग करते हैं, वहां कोई डिस्टर्बेंस कल नहीं हुआ। तो 1 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे जो किया गया, तो उसके पीछे कोई प्री प्लान था या किसने करवाया, क्यों किया, उसके पीछे भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनके पेरेंट्स को भी लाया गया है, इनके जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनको भी लाया गया पूछपरछ करने के लिए कि इस तरह की चीजें जो हुई, किसका इसके पीछे जो है दूरसंचार हुआ करता था। गुजरात के सूरत के सैयदपुरा में वरियावीचा राजा की प्रतिमा पर पथराव करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही सैयदपुरा में अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा आरोपियों के अवैध निर्माण का रिपोर्ट मांगा है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। સૈયદપુરા પોલીસ ચોકીની બાજુમાં જે એસએનસીની પોતાની જગ્યા છે, ગવર્મેન્ટ લેન્ડ છે, આના ઉપર કેટલાક લોકોએ ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરેલું છે। આ ઉપરાંત વિસ્તારમાં આસપાસ કેટલાક લોકોએ ગેરકાયદેસર રીતના લારી અને ગલ્લા મૂકી રાખ્યા હતા ફૂટપાથ ઉપર અને અન્ય જગ્યાએ। આના ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં અત્યારે આવી રહેલ છે, જેમાં એસએનસી દ્વારા આ બધી જગ્યાઓ નક્કી કરાઈ છે અને પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા તેઓને બંદોબસ્ત પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે। પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા જે બંદોબસ્ત પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે જેને કારણે શાંતિમય માહોલમાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને જે પણ જગ્યાએ આ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવશે ત્યાં પ્રશાસન એમની સાથે રહી અને આ બધી કામગીરી પૂર્ણ કરાવશે। इस गंभीर घटना को लेकर राज्य का गृह विभाग भी एक्शन में है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस मामले पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के जरिए मौका वारदात का निरीक्षण किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पथराव करने वाले लोग समाज के कसूरवार होने की बात कही। સૈયદપુરા વિસ્તારમાં ગણપતિ પંડાલમાં કાલે અસામાજિક તત્વો દ્વારા જે પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો, સૌ લોકોને પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। આખી રાત દરમિયાન વિસ્તારની અંદર કોમ્બિંગ કરીને જે લોકો દ્વારા પોતાના ઘરોની બાલ્કની, ટેરેસ પરથી અને અલગ અલગ જગ્યા પરથી જે પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો તે સૌ લોકોને ડ્રોન, સીસીટીવી અને અન્ય વિડીયોના વિઝ્યુઅલ્સના માધ્યમથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને આખી રાત સુરત પોલીસની બધી જ ટીમો દ્વારા ખૂબ મહેનત કરીને આ તમામ લોકોને પકડવામાં આવ્યા છે।
અનેક લોકો પોતાના ઘરની બહાર દરવાજામાં લોક લગાડીને અંદર છુપાયેલા હતા. કોઈક પડદાની પાછળ તો કોઈક ઉપર અભરાઈ પર બી છુપાયેલું પોલીસે પકડ્યું છે. આ બધા જ કિસ્સાને જોતા જોતા સાથે સુરત પોલીસને ખાસ સૂચન કરવામાં આવ્યું છે અને પોલીસ દ્વારા બી આ બાબતની ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે કે પથ્થર મારનાર એ કોઈ બી વ્યક્તિ હોય એ માત્ર कानूनी गुनेगार नहीं परंतु समाजनो भी खूब मोटो गुनेगार है। वडोदरा में आए दिन एक्सीडेंट की खबरें सामने आती ही रहती हैं। इसी तरह एक और हादसे की खबर नीलांबर सर्कल से सामने आई। गुजरात के वडोदरा के गोत्री नीलांबर सर्कल पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया जिसमें बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही महिला को सीमेंट भरे हुए मिक्सर मशीन ने चपेट में ले लिया। हादसे में बुरी तरह से घायल महिला की मिक्सर मशीन के नीचे दबकर मौत हो गई, जबकि हादसे में बच्ची को मामूली चोट पहुंची है जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी पाकर गोत्री पुलिस और परिवार मौके पर पहुंचे। घर की महिला की मौत के बाद परिवार मौके पर रोता बिलखता हुआ नजर आया। दरअसल रिहायशी इलाकों में भी ऐसे बड़े बड़े वाहन बेकाबू रूप से चलाकर लोगों की जान को खतरे में डाला जाता है। चश्मदीदों का ये भी कहना है कि डंपर चालक काफी नशे की स्थिति में था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और महिला की डंपर के नीचे दबकर मौत हो गई है। સૌથી પહેલા અમે અહીંયા સિગ્નલ પર અમે બધા ઊભા હતા, સિગ્નલ બંધ હતું અમારું અને આ ટ્રક વાળા ભાઈને આ બાજુ સેવાશ્રી બનીથી આવું અને આ બેન પ્રિયા ટોકીજ બનીથી આવતા હતા અને જે ડમ્પર વાળો હતો એ સિગ્નલ બંધ હોવા છતાં એ ભાઈ સ્પીડમાં નીકળવાની કોશિશ કરતો હતો। એક એક્ટિવા પર એક લગભગ 3 કે 4 વર્ષની નાની છોકરી હતી અને એક બેન હતા, એ સ્કૂલમાં મૂકવા જતા હતા અને છોકરીને વાગ્યું છે અને બેન જે હતા એ મરી ગયા છે ઘટના સ્થળે જ, કેમ કે આગળનું વ્હીલ ચડી ગયું, આખું માથું ફાટી ગયું છે બેનનું અને જે નાની છોકરી હતી એને અહીંયા હોસ્પિટલની અંદર દાખલ કરવામાં આવી છે। અને આ જે ડમ્પર વાળો હતો એ ફૂલ પીધેલી હાલતમાં હતો। એના સેટને અમે અહીંયાથી કેટલા બધા કોલ કર્યા, એ કોલ પણ ઉચકતો નથી અને અલ્ટ્રાટેકનું હતું એવું અમને વાત જાણવા મળી છે। એનો ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જોતા એકદમ નાનો હતો, કદાચ આપણને તો એવો વિચાર પણ ના આવે કે આ ટ્રક ડ્રાઈવર હશે, એટલો નાનો ટ્રક ડ્રાઈવર છે। એટલે સરકારશ્રીને અમારી એટલી વિનંતી છે કે બરોડાની અંદર જે અવારનવાર આવા એક્સિડન્ટો થતા હોય છે એમની ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરો અને પોલીસ બરોડા પોલીસને એટલી અમારી નમ્ર અપીલ છે કે તમે જે આવા લુખ્ખા તત્વો છે એમને તમે ઢોર મારવામાં આવે કે કદાચ કોઈની બેન દીકરી ભાઈ કે ગમે તે પરિવાર બચી શકે, કેમ કે કદાચ એ બેનના ઘરવાળા આવ્યા હતા, એટલું બધું રડ કકર કરતા હતા, આપણને પણ દયા આવી જાય તે જગ્યાએ। અને નાની છોકરી પણ બિચારી ઉપકી ગઈ હતી, કેમ કે 3 કે 4 વર્ષની હતી, એટલે અમે એને દવાખાનામાં દાખલ કરવામાં આવી છે। कुछ भी कहने जैसा नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था पहले होनी चाहिए, या ये मेजर सर्कल बन चुका है यहाँ पे। बस यही कहना है, ट्रैफिक वाले पुलिस वालों को सूद लेनी चाहिए कि इन चीजों ये बंद हो जाए। और क्या चाहिए इससे यार, कुछ नहीं चाहिए इससे यार, ये समस्या बंद हो जाए। આ સર્કલ ઉપર ટ્રાફિક પોલીસ હોતી જ નથી। એક્સિડન્ટ અત્યારે થયો ત્યારે જોવામાં આવે ને આ સર્કલ પર કાયમ માટે ટ્રાફિક પોલીસ હોવી જ જોઈએ, જેથી કરીને આવા બનાવ બને નહીં। દરરોજ બને। એમાં થોડા મહિના પહેલા ડમ્પર ચાલક અંબિકા 400 એક્ટિવા ચાલકને છોકરાને મારી નાખેલો આવી કચરીને, અને આજે બીજી ઘટના અહીંયા બની છે આ જ વિસ્તારમાં, ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જ। આવું અવારનવાર બને ને આના માટે કડક કાયદા કરો, डंपर चालकों लाइसेंस चेक करो તમે। गुजरात मॉडल को प्रोजेक्ट कर देश भर में लागू करने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी की पोल अब गुजरात में खुलकर रह गई है। यहाँ ना ही अच्छी शिक्षा मिल रही है और ना ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। गुजरात के कच्छ के लखपत के सानध्रु गांव में 12 साल के मासूम बच्चे को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई है। लखपत के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक सुविधाओं का भी अभाव है।
जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखपत तालुका में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पताल तक जाने की सड़कें भी अच्छी नहीं है, अस्पताल में पीने के लिए पानी भी नहीं है और स्वास्थ्य के संसाधन भी कार्यरत नहीं है। ऐसे में लोगों को सुचारू स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिल सकेगी? ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे एक मासूम की मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य सुविधा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ मेरे पोते को बुखार आया था 4 तारीख को, और 4 तारीख से हम ट्रीटमेंट दयापुर में कराया। दयापुर में कोई डॉक्टर है नहीं, MBBS डॉक्टर चाहिए या MDA चाहिए या इसके ऊपर MS चाहिए, मास्टर ऑफ सर्जरी। ये वो तो डॉक्टर यहाँ है नहीं। RMP है, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिस, खाली दवाओं जाणकार हो समझी सके कि आ दवा फलानी है। हाँ, एवी रीते ऐसा है। ये लोगों ने ट्रीटमेंट किया लेकिन पूरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हमारा लड़का 6 तारीख सुबह भुज ले गए, रास्ते में उनका देहांत हो गया। आज आरोग्य तंत्र सिर्फ उनकी कामगिरी सिर्फ कागज़ पे दिख रही है, और हम जब ग्राउंड पे गए तो ग्राउंड पर कहीं टीमें यहाँ पर आरोग्य तंत्र की नहीं दिखी। तब सरकार से विनती करते हैं कि तुरंत के तुरंत यहाँ पर जो निष्णांत है उनकी टीम यहाँ पर लखपत तालुका में भेजी जाए, जिसकी वजह से ये जो दिन ब दिन ये जो बढ़ता जा रहा है, रोग बढ़ता जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं काबू में लाने की हम कोशिश कर सके। आज आरोग्य तंत्र के पास जो साधन है वो साधन भी कहीं ना कहीं बिस्मार हालत पे पाए गए हैं। तो अच्छे साधनों के साथ, अच्छे डॉक्टरों के साथ यहाँ पर टीमों को भेजना चाहिए। आज यहाँ पर जो पीने के पानी की व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं लोगों को आज दूषित पानी पीने के कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं लोग। तो तंत्र से ये भी विनती करते हैं कि तुरंत ही लोगों को साफ़ पीने के पानी की आज मुहैया किया जाए। आज करीबन 6 दिन हो गए हैं जो मृत्यु हुई उसको, तब से अभी तक सरकार और आरोग्य तंत्र ये नहीं बता पाए कि इसका कारण क्या है। ये एक बहुत गंभीर और शर्मजनक बाबत है जो राज्य सरकार अभी तक इसका सही कारण भी नहीं पता पाई, और जब तक सही कारण नहीं पता चलेगा तब तक इसको किस तरह से दुरुस्त करना उसका रास्ता नहीं पाए। इसलिए विनती करते हैं राज्य सरकार से कि तुरंत ही कारण पता लगाकर इसके ऊपर काम किया जाए। यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में तरह तरह की कमी तो है ही, और ऊपर से स्वास्थ्य विभाग घर घर घूमकर लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक कर रहा है, लेकिन बीमारियों को दूर करने की कोई ठोस कवायद नहीं की जा रही है। लखपत तालुका में आरोग्य की सारी टीम्स काम कर रही हैं। जितने भी गांव में से OPD फीवर या कंजेशन की आ रही है, उन सब में हम लोग ने RBSK की टीम्स जो कि एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट देंगी, और जो सीवियर केसेस होंगे उनको रेफ़र करेंगी, उसकी व्यवस्था रखी है। हम लोग ने पशुपालन की सारी स्क्रीनिंग चला रहे हैं। सैंपल्स NIV पुणे भी भेजे गए हैं यहाँ से, जिससे वायरल की पूरी प्रोफाइलिंग हो सके। जो डेथ्स हुई हैं उनका एनालिसिस किया जा रहा है, जैसे उसमें 2 हार्ट अटैक से डेथ मिली है, 1 ब्रेन स्ट्रोक से डेथ मिली है, 1 ब्लड कैंसर से मिली है। इसके साथ साथ जो स्वाइन फ्लू के केसेस सारे नेगेटिव आए हैं सैंपल्स, लेप्टोस्पायरोसिस के सैंपल्स नेगेटिव आए हैं, टाइफॉइड के सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। तो RRT के साथ मिलके उनके मार्गदर्शन के हेठन कि क्या एग्जैक्ट कॉज है उसको भी हम लोग कर रहे हैं, बट प्रिकॉशनरी किसी का लंग कंजेशन ना बने उसकी हम लोग मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ कोई वाटरबॉर्न डिजीज़ ना हो इसके लिए सभी पानी की टंकियों की सफाई, एंटी मलेरियल एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ वो सब की जा रही हैं। एक्सरे मशीन एक पोर्टेबल CHC लखपत में हम लोग रखवा रहे हैं, वहाँ बेड की व्यवस्था बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट प्रिकॉशन के लिए वहाँ पे कर रहे हैं। एम्बुलेंसेस को स्टैंड बाय रखा गया है, और एक 48 आवर्स की इंटेंसिव ड्राइव हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, जिससे एक बार में जो भी फीवर या कंजेशन के केसेस हैं वो हमारे साथ आ सके। साथ साथ एक फीवर हेल्पलाइन चालू की गई है, एक फीवर कंट्रोल रूम शुरू किया गया है, जिसके थ्रू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके कोई भी केस सीवियर होने से पहले हम लोग हॉस्पिटल पहुंचा सके उसकी ड्राइव कर रहे हैं। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश रची गई, लेकिन गनीमत रही कि यह साजिश नाकाम रही। कानपुर में एक बार फिर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। अनवर कासगंज रूट पर रविवार देर शाम ये घटना घटी, जिसमें कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकरा गई। सिलेंडर फटा नहीं और ट्रेन से टकराकर ट्रैक के किनारे गिर गया। कालिंदी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने तुरंत घटना की सूचना सीनियर अफसर को दी। घटना के बाद RPF, GRP और रेलवे के सीनियर अफसरों ने जांच की। सोमवार सुबह IB, STF, ATS और NIA ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ट्रैक से सिलेंडर के अलावा बोतल में पेट्रोल, माचिस, एक मिठाई का डिब्बा और झोला मिला है। झोले में बारूद जैसा पदार्थ पाया गया। RPF ने कहा कि आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। मामले में 6 संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया है। पुलिस ने रडार पर इलाके के जमातियों को भी लिया है। जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया है। DCP वेस्ट राजेश कुमार सिंह ने पास में एक मजार है, वहां देश भर से जमाती आते हैं, ऐसा कहा है। आसपास से आने वाले जमातियों की जांच की जा रही है। कहां-कहां से जमाती आए हैं और कहां ठहरे हैं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। ये रेलवे के अथॉरिटीज के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफी देर तक रुकी रही। फिर RPF के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फोरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। गुजरात में गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और VNM TV आपको घर बैठे गुजरात में स्थापित गणेश प्रतिमाओं के दर्शन करा रहा है। VNM गणेश महोत्सव 2024 में सभी बाधाएं हरने, सुख समृद्धि की वर्षा करने पधारे विघ्नहर्ता के घर बैठे दर्शन कीजिए इस गणेश महोत्सव में। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक VNM TV के सभी प्लेटफॉर्म पर VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, ओम होम्यो कंसल्टेंसी सुभानपुरा।
गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं, गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। एक तू आराध्य मेरा तेरा आराधन करूं, एक तू आराध्य मेरा तेरा आराधन करूं। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं, गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। वक्रतुंड एकदंत नाम तेरे अनेक है, वक्रतुंड एकदंत नाम तेरे अनेक है। विघ्न हरिता सिद्धिदाता गौरी पुत्र गणेश है, विघ्न हरिता सिद्धिदाता गौरी पुत्र गणेश है। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं, गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। हमारा ग्रुप का नाम है शेरा ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट, गुजरात का राजा, जो हरिनगर 5 रास्ता गोत्री रोड पे हर साल की तरह इस बार भी स्थापना हुए है। इस बार हमारे ग्रुप ने थीम रखी है पेशवा टाइप, जो आप देख सकते हैं पेशवा टाइप हमने थीम रखी है। और हमारा ग्रुप अन्य सेवाकीय कार्य भी करता है, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप, एनिमल रेस्क्यू और फीडिंग का वगैरह वगैरह अन्य, और साथ ही साथ अलग अलग धर्मों के फेस्टिवल भी सेलिब्रेट एक साथ करता है। पुण्य का ये फल मिला तेरी शरण में आ गया, पुण्य का ये फल मिला तेरी शरण में आ गया। तेरी कृपा से आज मैं जीवन का हर सुख पा गया, तेरी कृपा से आज मैं जीवन का हर सुख पा गया। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा, और वो भी फ्री आइलेट्स एंड पीटीई कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। माता तू ही है, पिता तू ही है, बंधु तू सखा। माता तू ही है, पिता तू ही है, बंधु तू सखा। आरंभ मेरा तुझसे ही और अंत भी तुझ में सदा। आरंभ मेरा तुझसे ही और अंत भी तुझ में सदा। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं, गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं।
बापा मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया, मोरिया मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे। हम 2015 से 14 से बिठा रहे हैं, ये 10वां साल है हमारा गणपति का। ये बार गणपति में सर खास थीम वो है कि जैसे अपन 2024 में वर्ल्ड कप अभी अपन आईसीसी मेंस का जीत के आए हुए हैं, तो उस वर्ल्ड कप के मीटिंग दौरान में जय शाह ने जैसे बताया था मीटिंग में कि इस बार अपन भारत का झंडा बारबाडोस में गाड़े गए रोहित शर्मा जी की कप्तानशिप में। वो थीम को हमने देखे हुए मूर्तिकार से बात करके जो ये उसने हमको मूर्ति बना के दी, तो उस थीम पर हमने ये गणेश जी का स्थापन किया हुआ है। ये सर हमारी मूर्ति फुल्ली इको फ्रेंडली मूर्ति है, पूरी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है और ये इसका विसर्जन भी 1.5 से 1 घंटे के अंदर समाप्त हो जाने वाला है। सिद्धि विनायक मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, चिंतामणि मोरिया, वरद विनायक मोरिया, चिंतामणि मोरिया, वरद विनायक मोरिया, मोरेश्वरा मोरिया, महागणपति मोरिया, मोरेश्वरा मोरिया, महागणपति मोरिया। ये महाकाल के स्वरूप में बनाई गई हुई है। टिश्यू पेपर और न्यूज़पेपर में से ये मूर्ति हमने करीबन 2.5 महीने की मेहनत से बनाई हुई है। लगभग 40 साल हो गया। हमारा हॉरर शो शुरू होने वाला है महाकाल के रूप में 11 बजे से रात को करीबन 2 बजे तक। सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाएं, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। अष्टविनायक मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, अष्टविनायक मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, हाँ मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। लास्ट 17 ईयर से हम इच्छापूर्ति गणेश जी की स्थापना सिंधवाई माता रोड वार्ड नंबर 4 के बाहर करते हैं। हमारी जो इच्छापूर्ति गणेश की जो मूर्ति है वो इको फ्रेंडली फाइबर की मूर्ति है, जिससे हम हर साल नए श्रृंगार, नए रंग रूप से बहुत अच्छे से स्थापना करते हैं। ये बार जैसे आप देख रहे हैं कि गणेश जी महाभारत लिखते हुए हैं, उनके एक बाजू 5 पांडव और दूसरी बाजू कौरव की टीम है। पाछड़ प्रभा में श्री कृष्ण और अर्जुन है। ये बार हम लोग हर साल जो पंडाल होता है उसमें एक इच्छा पेटी भी रखते हैं, जिसमें लोग अपनी इच्छा लिखकर भगवान जी को समर्पित करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उनकी इच्छा पूर्ण થાય। इसीलिए हमें इच्छापूर्ति गणेश भी कहा जाता है। मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। 37वां साल है श्री जी की स्थापना का। हर साल हम अलग अलग थीम पे गणेश जी की स्थापना करते हैं। जो बड़ौदा के महाराजा का जिन जो नाम दिया है उस हिसाब पे इस थीम पे हम इस बार डेकोरेशन किया है। ये बंगाल से 40 कारीगर आए हुए हैं
उन्होंने 2 महीने से ये मेहनत करके जो डेकोरेशन किया है, उनको पहले हम अभिनंदन देंगे कि उनकी वजह से हमारी ये शोभा दिख रही है। और हमारे मंडल के जो कार्यकर है उन सबका आभार मानता हूँ। जिग्नेश ब्रह्मभट्ट, हेमिल पटेल और ऋषि जायसवाल और सब मंडल के आदमियों ने जो मेहनत किया है उन सबका मैं आभार मानता हूँ। मोरिया मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे। सिद्धि विनायक मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया। माजलपुर युवा शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट माजलपुर के राजा पिछले 24 साल से यहाँ स्थापना हो रहा है और पूरे बड़ौदा में बहुत ही श्रद्धा से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शनार्थ के लिए। इस बार हमने यहाँ पे पूरा जो हैंडीकैप है, दिव्यांग लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है या चल नहीं पाते, वो लोग के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की हुई है और यहाँ पे चरण स्पर्श की भी खूब सुंदर व्यवस्था हमने किया हुआ है। वहाँ जब आप जाते हो तो आपके पकड़ के लेते हैं, उसके बाद आपको हाथ धुलाने के बाद फूल की पाकड़ी देते और चरण स्पर्श करके अंत में आपको प्रसादी देते। तो पूरी व्यवस्था यहाँ 250 लोग की टीम है वो यहाँ पे करती है। तो आप पूरे बड़ौदा वासी और गुजरात को हम अपील करते हैं, आप यहाँ दर्शन के लिए आओ। ओम होम्यो कंसल्टेंसी होम्योपैथी के क्षेत्र में 2 दशक से ज्यादा का अनुभव, पेप्टिक अल्सर, टॉन्सिलाइटिस, एलर्जी से लेकर इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर, पार्किंसन, ऑटिज्म जैसी कॉम्प्लेक्स बीमारियों का इलाज, स्किन की बीमारी, हेयर लॉस से लेकर पेट की तकलीफें, अस्थमा का भी इलाज। यही नहीं, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कैंसर से लेकर छोटे बच्चों के कफ और कोल्ड का भी होम्योपैथी में होता है इलाज संभव। आपकी बीमारी और जरूरत के मुताबिक इलाज करते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव शर्मा और डॉक्टर पारुल शर्मा। ओम होम्यो कंसल्टेंसी 53, 54, 55 विमलनाथ कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट यूनियन बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा। चिंतामणि मोरिया, वरद विनायक मोरिया, चिंतामणि मोरिया, वरद विनायक मोरिया, मोरेश्वरा मोरिया, महागणपति मोरिया, मोरेश्वरा मोरिया, महागणपति मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया रे मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। हाँ, पिछले 16 साल से हम श्री जी की प्रतिमा का यहाँ पे स्थापित करते हैं और इस बार की थीम हमारी गरुड़ पे विष्णु भगवान की है और हमारे वहाँ पे पिछले 16 साल से एक मान्यता भी चलती आ रही है कि जो लोग भी इधर मान्यता मानते हैं और वो लोग सफरजन का हार भी चढ़ाते हैं। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया, मोरिया मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। सिद्धि विनायक मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, चिंतामणि मोरिया, वरद विनायक मोरिया, चिंतामणि मोरिया, वरद विनायक मोरिया। सभी बाधाएं हरने, सुख समृद्धि की वर्षा करने पधारे विघ्नहर्ता के घर बैठे दर्शन कीजिए इस गणेश महोत्सव में। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक VNM टीवी के सभी प्लेटफॉर्म पर VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज,
ओम होम्यो कंसल्टेंसी सुभानपुरा। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments. यहाँ तुमने મળશે एक grand living room with an amazing view. साथ एक comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms लो पहलो bedroom with an amazing balcony view. साथ the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा के पशाभाई पार्क में गणेंद्र मेहता के निवास स्थान पर श्री जी के स्वागत के लिए बॉलीवुड के संगीतकार पधारे। वडोदरा में गणेश महोत्सव इन दिनों उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कई घरों में भी गणेश जी की स्थापना की गई है। पशाभाई पार्क में गणेंद्र मेहता पिछले 8 सालों से इको फ्रेंडली श्री जी की स्थापना करते हैं। इस वर्ष भी 1.5 दिन के गणपति की स्थापना की गई और विशेष भारतीय फूलों से भगवान का श्रृंगार भी किया गया। शीशम के सिंहासन पर कमल के फूल पर श्री जी का आसन बनाया गया। श्री जी के स्वागत के लिए बॉलीवुड के संगीत कलाकार, शहनाई वादक जय शिंदे, सितार वादक पठान साहब और तबला वादकों ने उपस्थित रहकर गणेश वंदना और मंगल ध्वनि करते हुए मंगल कामना की। વર્ષો વરસ અમે ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ બાપાની ઉજવણી કરીએ છીએ। હર ગણેશ ચતુર્થીએ અમે ઘરમાં બાપાની પધરામણી કરીએ છીએ। 1.5 દિવસના ગણપતિ છેલ્લા 8 વર્ષથી રાખીએ છીએ। આમાં જે સજાવટ તમે જોવો છો, ખાસ કરીને ફૂલોની, એ ફૂલો અમે ઇમ્પોર્ટ કરતા હોઈએ છીએ। જો કે આ વર્ષે અમે લોકોએ ઇન્ડિયાના જ ફૂલ વાપર્યા છે। જે તમે સિંહાસન જોવો છો જેમાં બાપા બેઠા છે, એ સિંહાસન સેવનનું સિંહાસન છે
અને કમળના સિંહાસન ઉપર એમને બેસાડવામાં આવ્યા છે, જે એમને સૌથી પ્રિય ફૂલ છે. એટલે હર વર્ષની રીતે આ વર્ષે પણ દોઢ દિવસના ગણપતિ બાપા આપણે ઘરમાં બિરાજમાન કર્યા છે. गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में आज 2.5 दिन की गणेश स्थापना के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गणेश उत्सव यूं तो 10 दिन चलता है, लेकिन 1.5 दिन, 2.5 दिन, 5 दिन और 7 दिन बाद भी गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। गणेश स्थापना की 2.5 दिन की मन्नत वाले भक्तों ने आज भक्ति भाव से गणेश जी को विदा किया। इस मौके पर भगवान गणेश जी की आरती और 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। बापा मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया रे। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में बनाए गए कृत्रिम तालाबों में गणेश जी की प्रतिमाओं का भक्ति भाव से विसर्जन किया गया, जो दिन भर जारी रहा। गुजरात के वडोदरा के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हुए नुकसान के चलते तालुका कांग्रेस कमेटी ने मामलतदार को आवेदन दिया है। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश और विश्वामित्री के बाढ़ के चलते शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी काफी नुकसान पहुंचा है। यहां के बाढ़ पीड़ितों के लिए तालुका कांग्रेस कमेटी द्वारा सहायता मांगी गई है। के माध्यम आप ही जान रहे हो कि कुछ पिछले दिनों के अंदर काफी पूर्व आने के वजह से पूरे बड़ौदा तहसील के अंदर सभी घरों के अंदर 5-7 फुट पानी होने के कारण काफी नुकसान हुआ है। खेडूतों को भी नुकसान हुआ है, जिनके लिए हम लोग आज मामलेदार जी को आवेदन पत्र दे के उनके मुआवजे के लिए उनको रजूआत किया है कि उनको जल्दी से जल्द उनको मिल जाए। जैसे आप जानते हो कि 7-7, 8-8 फुट पानी की वजह से उनके घर में जो कुछ भी सामान था वो नष्ट हो गया है, और उनको कैश डॉल के रूप में एक व्यक्ति दीठ उनको केवल 100 रुपया और घर के लिए 2500 रुपया दिया था, वो बिल्कुल गलत है। उनकी जगह पर उनको सही से मुआवजा मिले, यही हमारी मांग है। सभी जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा जाए तो जैसे पादरा डिस्ट्रिक्ट, पादरा तहसील है, बड़ौदा तहसील है, वाघोडिया तहसील है, उनमें काफी नुकसान हुआ था। कम से कम 15-20 करोड़ का नुकसान गांवों के विस्तारों में हुआ है। अगर हमारी मांगनी स्वीकार नहीं करेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। नदी में पूर आएला है, એનામાં જે વર્તનની જે સરકારની જોગવાઈ છે 2015ના પરિપત્ર પછી 22 અને 23 એમાં વધારો કરવા માટે લોકોએ રજૂઆત કરી છે। એ રજૂઆત અહીંયાથી અમે માનનીય કલેક્ટર સાહેબ સરકારમાં મોકલાવશું। જે હાલ 2500 રૂપિયા લખે છે ઘર વખરીનો, એમાં વધારો કરવા માટે અને કેશ ડોલમાં જે 100 રૂપિયા પર ડેના છે એમાં વધારો કરવા માટે લોકોએ લિખિતમાં રજૂઆત કરી છે। તમે કેમની રજૂઆત કરશો? અમે તો આ એમની જે રજૂઆત છે કલેક્ટર સાહેબને ફોરવર્ડ કરશું, કલેક્ટર સાહેબ સરકારમાં મોકલશે કે ભાઈ આ લોકોએ વર્તનમાં વધારા માટે रजूआत आएली है, सरकार पॉलिसी लेवल डिसीजन लेશે। गुजरात के गिर सोमनाथ जिला के सूत्रापाड़ा की सरस्वती लिंक कैनाल अपग्रेड करने की कवायद शुरू की गई है। गिर सोमनाथ के सूत्रापाड़ा की सरस्वती लिंक कैनाल को अपग्रेड करने की मांग जिला भाजपा उपाध्यक्ष राम वाढेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की थी। इसके बाद इस लिंक कैनाल को अपग्रेड करने की कार्यवाही शुरू की गई है, जिससे 14 गांव के किसानों को राहत होगी और समंदर में बहकर बर्बाद होने वाली बरसाती पानी का संग्रह किया जा सकेगा। आ विस्तार में खारा पानी से आगळ वधतुं हतुं तो अहींया जे वडोदरा झाला डेम छे ए ओरस 36 किलोमीटर में आवेलो छे। आनी अंदर खारू पानी भराय अने आनी अंदर मीठुं पानी नाखवा माटे 2002 में 20/5/2002 ना रोज हालना वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री हता अने बाबूभाई बोखीरिया सिंचाई मंत्री हता, त्यारे अमे रजूआत करी अने आ डेमनी अंदर प्राचीन में आवेल सरस्वती लिंक केनाल सराथी थरेलीना तलाव सुधी पुगाडवामां आवे तो मीठुं पाणी वेकळानी अंदर पड़े तो आ वडोदरा झाला डेम में पड़े अने ए डेम भराय
જેથી ખારું પાણી આગળ વધતા અટકે અને આ ડેમની અંદરથી પણ સિંચાઈ થાય અને મીઠું પાણી થાય એ ગણિતથી આ કામ કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ આ કામ પેલું ભાવનગર ઓફિસ મારફત 80-20માં કરવામાં આવ્યું હતું. એ એજન્સી કામ પૂરું ન કરી શકી અને વરસાદ આવી ગયો એટલે ત્યાં અંદર માટી હોય છે, એ વરણ આવે છે, વરણના હિસાબે કેનાલ પડી જાય છે. ત્યાર પછી 2 વખત ટેન્ડર કરવામાં આવ્યા, એ પણ નિષ્ફળ ગયા અને કામ થયું ને એ પાણી પહોંચ્યું નહીં. આને મેં જુલાઈની અંદર સરકારમાં અને વડાપ્રધાનશ્રીને કાગળ લખીને જાણ કરી, હું સાહેબ આ પ્રશ્નો છે અને 11 ગામોને આનો ફાયદો થાય એમ છે અને 500-600 હેક્ટર જમીન આનાથી પિયત થાય એવું છે. આ કાગળ લખ્યા પછી વેરાવળના સાર અંકુશ અધિકારીને મને ફોન આવ્યો કે તમારી રજૂઆત છે તો કેનાલ ઉપર આવો, આપણે જોઈ લઈએ કઈ રીતે બનાવવાની છે. એટલે હું મારા સનને ત્યાં મોકલ્યો અને આખું કેનાલનું લોકેશન જોઈ અને કેનાલનું એસ્ટિમેટ 4 કરોડની આસપાસ બનાવવામાં આવેલું ને એ એસ્ટિમેટ સરકારશ્રીમાં મોકલેલું અને આ કેનાલ થાય આ ચોમાસા પહેલાં ડેમમાં પાણી પેડે એવી મારી નમ્ર અપીલ છે અને ખેડૂતોને ફાયદો થાય એમ છે. સરસ્વતી લિંક કેનાલ સરસ્વતી નદીથી વડોદરા જિલ્લા ભરતી નિયંત્રણ યોજનામાં દરિયામાં વહી જતું પાણી ને ભરતી નિયંત્રણ યોજનામાં સ્ટોર કરી અને લોઢવા, પાદુરકા, બરુલા, થરેલી એવા કુલ 14 ગામને પાણીનો સિંચાઈનો સીધો કે આડકતરો લાભ આપવા માટેની એક યોજના હતી. કેનાલનો વધુ ફાયદો મળે અને ખેડૂતોને વધુમાં વધુ લાભ મળે એના માટે રામભાઈ લોઢવા, ઉપપ્રમુખ ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભાજપ દ્વારા માન્ય વડાપ્રધાનને રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે કે કેનાલનું અપડેશન કરવાની જરૂર છે. એટલે કે કેનાલને થોડી પોળી કરવાની જરૂર છે, થોડું કેનાલમાં પાણી વધારે ડાયવર્ટ થાય તો આ વિસ્તારને વધુમાં વધુ ફાયદો મળે એના માટેની રામભાઈ રજૂઆત કરેલ હતી. એના માટે અમારે તાંત્રિક ટીમે અને મેં પણ બધો સર્વેનો ડેટા કલેક્શન કર્યું છે. એ પ્રમાણે કેનાલના 11 સીડી વર્ક્સ એટલે કે પુલિયાને અપડેટ કરવા પડે એમ છે. કેનાલ 2.5 મીટર પહોળાઈ છે નીચેની, એને 3.5 મીટરની પહોળાઈમાં કેનાલ બનાવવી પડે એમ છે. અને અમુક જગ્યાએ હજુ પણ પ્રોબ્લેમેટિક સોઇલને કારણે કેનાલ ધસી પડે છે, જેથી 200 મીટરમાં નવા પાઇપ નાખવા પડે એમ છે. કેનાલ 0 થી 233 મીટર સુધી કેનાલમાં જ્યારે પાણી ફોર્સથી પ્રવેશ કરે છે ત્યારે કેનાલના કાંઠા ધોઈ નાખે છે. એટલે 0 થી 200 મીટર સુધી બોક્સ કેનાલ મારફતે પાણીને કેનાલમાં ડાયવર્ટ કરવાનું પણ અમે આયોજન કરેલ છે. આ સમગ્ર કેનાલનું આ અપડેશન અને મોડિફિકેશન કરવા માટેનું એસ્ટિમેટ બનાવેલું છે 3 કરોડ અને 90 લાખનું. मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी पर बने पुल को पार करते वक्त एक परिवार पानी के बहाव में बह गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी पर बने पुल को पार करते वक्त बाइक सवार पूरे परिवार के साथ नदी के बहाव में बह गया। इस घटना को देखकर कुछ लोगों ने तुरंत पानी में छलांग लगाकर परिवार को बचाने की कोशिश की, जिसमें 7 साल की बच्ची बच गई, लेकिन परिवार के 3 लोगों के साथ साथ पानी में परिवार को बचाने कूदा युवक भी पानी में बह गया। हम नदी ड्यूटी कर रहे थे, शाम को भी की, सुबह भी की। थाने से और तहसील से हमारे आर्डर थे कि नदी पे रहना। तो नाहरगढ़ की साइड पुलिया पे थे तो रास्ता चालू हो गया था, तो ये उधर से आ रहे थे बिल्लो तरफ से। तो लेडीज, आदमी और 2 बच्चे उसके साथ, और पानी वो तेल की टंकी पे बैग रखा था वो बड़ा। तो जैसे वो बैग उसके हैंडल में ये हो गया होगा तो नीचे नदी में जैसे गिरा वो, हमको पता चला कि आदमी गिर रहा है। हम दौड़ के ऐसे सब, मैं और एक बबलू था, वो हम कूद गए उसके पीछे पीछे। तो आदमी के पास एक बैग और बच्ची जो भी अस्पताल में है वो आदमी के पास थी। बैग नहीं छोड़ा था वो आदमी। तो मैं गया तो वो बच्ची मैंने ली। मैंने कहा भाई साहब आप वो छोटे बच्चों ले लो, मैडम थी, और बैग छोड़ दो आप। तो उन आदमी ने बैग नहीं छोड़ी और उन लेडीज के पास, लेडीज डूबी रही तो भी उन बच्चा ने तो ऊँचो रखी पानी थी मैंने। तो वो मेरे गए तो उन आदमी वो लेडीज और छिमा पकड़ा पकड़ी हुई होना की, तो बैग नहीं छोड़े तो ऐसा से उनके डूबा लग गया। और बच्चे ने मुलाई ने कम से कम सर यहाँ थी तो
तो बताऊँ आपने कि जो भी है आगे पानी के बहाव के साथ साथ चल गया, और उनके बाद आगे नींबू भी साथ मारे फूल गए, फिर और दूसरा भी आया किनारे, फिर उनके बाद उन्होंने बच्ची ने ली उन्होंने और डॉक्टर अस्पताल में लिया। डॉक्टर साहब ने भी कंप्लीट था, डॉक्टर साहब भी फटाफट आई ने इलाज कर दिया डॉक्टर साहब ने वो बच्ची। ये थाना नाहरगढ़ क्षेत्र की घटना है। ये नाहरगढ़ बिल्लोद मार्ग पे पुलिया है। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ निकल रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल स्लिप होने से उसका बैग नीचे गिरा और मोटरसाइकिल सहित नीचे पुलिया में चला गया, नदी में चला गया, जिसके कारण से फिर तत्काल जब मौके पे यहाँ पे कुछ लोग थे उन्होंने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें एक बच्ची को बचा लिया गया है और महिला और एक बच्ची की डेड बॉडी निकाल ली गई है। 2 लोगों की तलाश इसमें जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सांस्कृतिक विरासत को संजोने और धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक स्थल के विकास की कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में करीब 4 करोड़ की लागत से मनकामेश्वर और फुलेश्वर महादेव मंदिर का नवीनीकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक विरासतों को विकसित करने के लिए ये कवायद शुरू की गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नकल का अधिकार दें। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेशवासी का हो नहीं सकता जो इस देश ने प्रदेश में लिखा और उसने इस शिक्षा का पटवारा किया। योगी जी आए, पहले 5 साल में उसको लाइन पर लाए। आज 2 साल के अंदर जो उत्तर प्रदेश में उत्कृष्टता आई है हायर एजुकेशन में, माध्यमिक एजुकेशन में, आज बताइए इस 2 साल में एक पेपर लीक की घटना हुई है, बस एक पेपर लीक की घटना हुई है, इसके अलावा नहीं हुई। दूसरी, उसके बाद इसको सबको टेक्नोलॉजी जोड़ा गया। दूसरा, आज उत्तर प्रदेश में इससे पहले एक भी विश्वविद्यालय B+ श्रेणी का भी नहीं था नैक रैंकिंग में। आज उत्तर प्रदेश के 7 सरकारी की बात कर रहा हूँ, 7 सरकारी विश्वविद्यालय A++ ग्रेड में, 6 A+ ग्रेड में और गैर सरकारी 6 विश्वविद्यालय A+ ग्रेड में और 4 A ग्रेड में। B+ में भी कितने, मुझे उसकी तो गिनती नहीं करता मैं, ऊपर की 3 UGC ग्रेड 1 में। इससे पहले उत्तर प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय पहली 500 रैंकिंग में नहीं था, पूरे की रैंकिंग जो है। आज 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो 93 और 97वीं रैंक में है। कितना बड़ा जंप है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पति ने ही आपसी घरेलू के झगड़े में पत्नी को नुकीले चाकू से मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ईटिया थोक थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने सफल पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे पति अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। दिनांक 5 सितंबर 2024 को थाना ईटिया थोक क्षेत्र के क्षेत्रांतर्गत ग्राम धर्मे में एक महिला परवीन बेगम पत्नी अलाउद्दीन की हत्या हुई थी और इस पर थाना ईटिया थोक क्षेत्र अंतर्गत निवासी व्यक्ति ने सूचना दी थी कि इस महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और सबके पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। साथ ही डॉग स्क्वाड एवं फील्ड यूनिट टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करवाई गई। इसके उपरांत थाना ईटिया थोक पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीमों का गठन किया गया और इसी क्रम में आज दिनांक 8 सितंबर को स्थानीय पुलिस एसओजी टीम एवं सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी मुख्य अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ अलाउ पुत्र अयूब को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही से आला कत्ल चाकू एवं खून आलूदा कपड़े बरामद किए गए हैं। पूछताछ में हत्या अभियुक्त ने बताया कि मृतका एवं हत्या अभियुक्त दोनों पति पत्नी हैं और दोनों के मध्य पिछले काफी समय से पारिवारिक कलह चलती आ रही थी और घटना के दिन 5 सितंबर को भी मृतका एवं हत्या अभियुक्त के मध्य खाना बनाने की बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। इसके बाद हत्या अभियुक्त काम पर चला गया और दोपहर में फिर वापस आया। दोपहर में जब 1 बजे घर पर वापस आया तब इसने देखा कि इसकी पत्नी सो रही है, तो इस बात से पहले से गुस्साया था और अपने किचन में रखे चाकू उठाकर पत्नी की गला रेतकर इसने हत्या कर दी।
उत्तर प्रदेश के गोंडा के इटियाथोक के कोटिया तालाब से 2 किशोरियों का शव मिलने से हड़कंप मच गया था, जिसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को बाहर निकाल कर तफ्तीश शुरू कर दी है। शवों की पहचान 16 वर्षीय पूनम और 15 वर्षीय पम्मी के रूप में हुई है। इन बच्चियों के तालाब में फिसल जाने का अंदाजा फिलहाल लगाया जा रहा है। कल दिनांक 7 सितंबर 2024 को समय करीब शाम 5 बजे थाना इटियाथोक पुलिस को आवेदक श्री खुनकुन निवासी छिछोली भवनियापुर द्वारा लिखित सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री एवं नातिन कल दोपहर करीब 1:30 बजे शौच के लिए कोटा तालाब के पास गई थी, जो कि वापस नहीं आई हैं। साथ ही पुलिस को उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें शंका है कि दोनों सिंक तोड़ने तालाब में न उतर गई हों, जो कि काफी गहरा है। इस लिखित सूचना पर थाना इटियाथोक पुलिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और दोनों की तलाश शुरू की गई। दोनों की चप्पल तालाब के पास उतरी हुई मिली है और आज सुबह दोनों के शव तालाब में तैरते हुए मिले, जिन्हें बाहर निकाला गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारीगण मौजूद हैं। शवों के पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया शवों पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। शवों के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करवाई गई। प्रकरण में अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति तथा कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए कई सामाजिक और धार्मिक संगठन सामने आए हैं। वडोदरा में पिछले दिनों आई बाढ़ में लाखों लोग प्रभावित हुए और उन्हें करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हुआ। कुछ इलाकों में तो 8-10 फीट पानी भर गया, जिसमें लोगों का घर का सामान भी डूबकर खराब हो गया। ऐसे में कई धार्मिक और सामाजिक संगठन बाढ़ पीड़ितों की सहायता में आगे आए हैं। इसी के तहत श्री विश्वकर्मा धाम और पंचाल नवयुवक मंडल द्वारा जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण किया गया, जिससे कई लोगों को बाढ़ से उपजी स्थिति से निपटने में बड़ी सहायता मिली है। जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा भगवान की जय। गुजरात के वडोदरा जिला के डेसर सेवा सदन में उप मामलतदार द्वारा रिश्वत मांगे जाने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वडोदरा जिला के सावली के डेसर में उप मामलतदार BM वालंद के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। पेटिशन राइटर का लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए रिश्वत मांगता हुआ वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें रिश्वत मांगी होने का दावा किया गया है। इस मामले शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। 2017 पिटिशन राइटर तरीके फरज बजावुं छुं અને અમારો પરવાનો દર વર્ષે રિન્યુ કરવાનો હોય તો આ વર્ષે પરવાનો રિન્યુ કરવા માટે મારો એમની અરજી આપેલી, એમાં મામલતદાર ભરતભાઈએ મારો પરવાનો 7 મહિના રોકી રાખ્યો અને પછી મને પૈસાની માગણી કરી કે મેં પૈસા મારી જોડે હતા નહીં તો 4000 રૂપિયા આપ્યા અને બીજું મને કે બાકીના પૈસા મને આપીશ ત્યારે હું તારો રિન્યુ કરીશ પરવાનો। જ્યારે હું કહેવા જાઉં કે સાહેબ મારો રિન્યુ કરો તો મને મન ફાવે એવી ગાળો બોલે અને જેટલા લેટ પૈસા આપીશ એટલા લેટ તારો પરવાનો રિન્યુ કરીશ। પછી મેં અરજી કરી CM સાહેબને, તો મને ગમે તેને જેવડે માણસ જોડે અને ધાક ધમકીયા લગાવે, વારે ઘડીએ ફોન કરીને કે તું આવું ના કરીશ, અરજી ના કરીશ, નહીંતર કે આવું થશે તેવું થશે એમ કરીને મને દબાવડાવે છે। તમારી જોડે એમનો એક વિડીયો બી છે? હા, વિડીયો મારી પાસે છે। એમને પૈસા લીધા એ મને બોલે છે અને ગાળા બોલે એ પણ બધું મેં આવી ગયું। गौरतलब है कि इससे पहले सावली के विधायक केतन इनामदार भी सावली सेवा सदन में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। हरियाणा में विधानसभा का माहौल गर्माता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जयकरण वर्मा ने ब्रजभूषण को खुली चुनौती दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच राजनीति गर्माती जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस की प्रत्याशी विनेश फोगाट पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिया था, उस पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जयकरण वर्मा ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा आकर भाजपा का प्रचार करके दिखाएं। क्या ब्रजभूषण का वो बयान देशद्रोह से कम नहीं है? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराने का काम करेंगे तो मैं जयकरण वर्मा प्रदेश महासचिव AICC का सदस्य होने के नाते कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बनिए, मोदी जी के साथ
मंच साझा कीजिए, योगी जी के साथ मंच साझा कीजिए। मैं विश्वास से कहता हूं अगर जो 20 सीट उनकी आने वाली होगी तो 2 सीटें जनता पार्टी में अपराधियों और बलात्कारियों का जो संरक्षण है हम उसका विरोध करते हैं और अपनी नेता का माननीय प्रियंका गांधी का सलूट करते हैं कि जिन्होंने उन बेटियों के साथ कदम से कदम मिलाया, हमेशा उस लड़ाई में अपने आप संविधान हित में है, रोजगार के लिए भी है, सुरक्षा के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए है। मैं अपनी नेता को सलाम। गुजरात की सूरत में कल हुई अशांति फैलाने की कोशिश के बाद आज दिन भर सूरत पुलिस ने माहौल को संपूर्ण रूप से काबू में करने की कवायद की। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर हुए पथराव के बाद 2 धर्म के लोग आमने सामने आ गए थे, जिससे काफी बवाल हुआ था। गणेश महोत्सव के दौरान फैली इस अशांति पर काबू पाने के लिए गुजरात की सूरत पुलिस ने आज दिन भर कड़ी मशक्कत की। सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने शांति कमेटी की बैठक ली और सभी धर्म के अग्रणियों को शांतिपूर्वक त्योहारों को संपन्न कराने की अपील की। साथ ही आज सूरत के ज्यादातर इलाकों में पुलिस का पहरा देखा गया। जगह जगह पुलिस ने कॉम्बिंग कर असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देते हुए गणेश महोत्सव में शांति बनाए रखने की कवायद की। गणपति जी की स्थापना हुई है और विसर्जन है 17 तारीख को और 16 तारीख को ईद का भी त्योहार है। दोनों के बड़े प्रोसेशन इस एरिया में से निकलने वाले हैं, तो उसके भाग रूपे यहाँ एरिया में पेट्रोलिंग की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और जितने भी ढाबा हैं हर एक ढाबा 100% ढाबा हम लोग ड्रोन से और हमारे पुलिस वालों से चेक करवा रहे हैं। अगर किसी ढाबा पे पत्थर मिले तो आज हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाई चांस कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वहाँ पे कोई मटेरियल पड़ा है कंस्ट्रक्शन का, पत्थर वत्थर पड़े हैं तो उनको हटाने के लिए बोल रहे हैं। फिर दोबारा से कल परसों फिर हम चेक करेंगे, दोबारा मिलेगा तो गुना दाखिल करेंगे बाद में जो भी मकान का मालिक रहेगा उसके ऊपर। और नए कोई भी किराएदार नए आदमी इस एरिया में रह रहे हैं, बाहर के आदमी आके न्यूसेंस करेंगे तो जो आदमी उनको शरण देगा वो उनके लिए जिम्मेदार रहेगा। तो ये सब चीजें बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएंगी। और अभी हमारे एरिया में जितने तड़ीपार हैं, जितने आरोपी हैं, बॉडी ऑफेंस करने वाले हैं, उन सब की लिस्ट तैयार करके उन सबको वेरीफाई किया जा रहा है। तड़ीपार को चेक किया जा रहा है, हिस्ट्री सीटर MCR हैं उन सबको चेक कर रहे हैं हम लोग। और ये कंटिन्यू ड्रोन से हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा और इस तरह से एरिया डोमिनेशन ये सब काम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पब्लिक से भी अपील है कि इसमें पुलिस का सहयोग करें और उन्हें ढाबा पॉइंट चेक कर लें, उस पर किसी तरह का ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे हम कंटिन्यू हमारे जो सेल है, साइबर सेल है वो और लोकल पुलिस स्टेशन ये कंटिन्यू उसको मॉनिटर कर रहे हैं सोशल मीडिया को। कोई भी आदमी अगर नेगेटिव या भड़काने वाली कोई भी चीजें लिखेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम कंटिन्यू इसको मॉनिटर कर रहे हैं और पब्लिक से भी अपील है कि इस तरह की अगर चीजें कोई सामने आती है तो अफवाहों पे ध्यान नहीं दे, हमें बताए कि इस तरह की चीजें कोई सोशल मीडिया पे डाल रहा है। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो TV, वोडाफोन TV और जियो फाइबर पर 49H नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।